آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ آپ کے پاس تیاریاں ہیں، آپ نے کچھ اکٹھا کیا قیامت کے لیے؟ اب اس صحابی کا بڑا پیارا جواب نکلا، بڑا اچھوتا جواب نکلا۔ جب نبی کریم نے پوچھا ما عادت لہا، آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں ما عادت لہا من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقہ ولکن احب اللہ ورسولہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں تیاری کے بارے میں کیا کہوں؟ میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس زیادہ روزے نہیں ہیں، میرے پاس زیادہ صدقہ خیرات نہیں ہے، ولکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب صحابی نے اتنا کہا، نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو سن لے، نبی نے صحابی کے اس جواب پر فرمایا انت مع من احببت، اے میرے صحابی تو یہ بھی سن لے، اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار۔ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم پیار کرتے ہو۔ دیکھیں یہ کتنا بہترین مجمع ہے، اور ہم اور آپ بین یعنی درمیان میں بیٹھے ہیں، ایک طرف مزار ہے، ایک طرف خانقاہ ہے، ایک طرف درسگاہ ہے، دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہیں تو کچھ ایسے نبی کے خطار ہوتے ہیں، اولیاء کے خطار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ سنی شعر پڑھتے ہیں، گفتے اللہ اکبر، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ اور جب یہ سنی بولتے ہیں کہ کہاں سے بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ ایک ولی کے بارے میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ ولی بولتا ہے، اللہ اس کی زبان پہ بول رہا ہے، اللہ کی طاقت قوت ہوتی ہے، اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے۔ اگرچہ حلق جو ہے بندے کا ہے لیکن باتیں اللہ کی نکلتی ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ کیسی بات بہتی بہتی سننی کرتے ہیں؟ تو سنیں، میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن سورہ مریم ہے، سورہ مریم کو پڑھیے گا، لیکن افسوس تو یہ ہے ہم اخبار پڑھتے ہیں، ہم موبائل کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم قرآن کو اپنے گھر میں تاج کے اندر سجا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ کہاں کہاں کی باتیں کس طرح قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہم اس کے طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آج المیہ ہے قوم مسلم کے لیے، آج ہمارے بچے IAS بننے کی تمنا کر رہے ہیں، PCS بننے کی تمنا کر رہے ہیں، IPS بننے کی تمنا کر رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر فلاسفی بننے کی تمنا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو IAS بناؤ، PCS بناؤ، IPS بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دو، کیونکہ سائنس کا وجود حاصل ہوتا ہے تو قرآن کے ذریعے ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے جان لینڈ کیا گیا ہے چاند کے اوپر، سنو اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، قرآن پڑھ کر کو دیکھو قرآن میں ہے کیا نہیں۔ آپ 30واں پارہ اٹھائے، 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام ہے سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق ارشاد فرماتا ہے اور بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، دنیا کو چیلنج دے دو اے سائنس والا، آج جو تو کر رہا ہے، جو سچ کر رہا ہے، جو تو باتیں نکال رہا ہے، یہ سب میرے قرآن کے اندر موجود ہے، یہ سب اللہ کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ آپ کہو کہ مولانا پڑھ کر بتاؤ، تو سنیں سورہ انشقاق ہے، اللہ فرماتا ہے والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب برابر ہو جائے، جب مکمل ہو جائے، چاند کی قسم اللہ فرما رہا ہے جب مکمل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم چڑھو گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ فرما رہا ہے جب چاند مکمل ہو جائے تم اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھو گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھو گے۔ آج سائنس والے کہتے ہیں ہم چاند پر پہنچ رہے ہیں، تو سنو میرا قرآن اعلان کر دے رہا ہے، رب کا پیغام فرمان اعلان کر دے رہا ہے کہ ہاں ہاں تم چڑھو گے۔ آج نہیں، ایک زمانہ اور تھا 1965 میں 3 لوگ گئے تھے چاند کی سفر میں، اور جو انہوں نے نظارہ دیکھا تھا اور جو سب سے پہلے چاند کے سفر میں نکلے ہیں، جمع کا اللہ سے بھی ارشاد فرما رہا ہے 3 لوگ گئے ہیں، جمع کہتے جو 2 سے زیادہ ہو، 2 سے زیادہ ہو وہ جمع ہے، جو 10 سے زیادہ ہے وہ جمع منتہو جمع ہے، وہ الگ بات ہے، وہ 9 سے فلک ہے،
लेकिन सुने जो 2 से ज्यादा वो जमा है। और 1965 में 3 लोग गए थे चाँद के सफर पर, और जब चाँद के सफर पे गए, जा रहे हैं 1965 में, लेकिन अल्लाह हमें उसी वक्त फरमा दिया फहुम ला युमिनून, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो, तुम चाँद पे जा रहे हो, ये अल्लाह का फरमान है कि तुम छोड़ोगे तब चढ़क चढ़ोगे और जाओगे, ये अल्लाह का फरमान है। मुफ्ती शरीफ उलहक साहब किबला अलैहि रहमत तस्लीमुल आली व नूरानी एक किताब भी लिख कर दे गए थे, इस्लाम और चाँद का सफर। ये कब कुरान में क्या नहीं है हम पढ़ेंगे तब न जानेंगे, लेकिन अफसोस है आज अपने बच्चों को कुरान से दूर रखा जा रहा है, तिलावत के कुरान से दूर रखा जा रहा है, कुरान की फहम तफहीम से दूर रखा जा रहा है। हमारे बच्चे बने तो कैसे बने, पढ़े तो कैसे पढ़े, आगे बढ़े तो कैसे बढ़ेंगे। ऐ लोगों, अपने बच्चों को कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में बाद में भेजिएगा, पहले अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर उनको दीनी तालीम से आरास्ता कर दें। तो सुने वही कुरान है, सूरह मरियम है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, उलमा बयान करते हैं। और सुने उसी कुरान के हवाले से तफसीर मदारिक के अंदर जाए तो तफसीर मदारिक के अंदर कुरान की एक आयत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जब मदियन से वापस मिस्र के लिए हुए हैं, अपनी बीवी हजरत सफूरा को लेकर चले हैं, रात की तारीकी है, ठंडी का आलम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, बीवी को ठंडक लग रही थी, हजरत सफूरा को ठंडक लग रही थी, कहा रुके आप, मैं कहीं से आग का इंतजाम करता हूँ, कहीं से आग का इंतजाम करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले हैं आग के इंतजाम के लिए, आग की तलाश में निकले हैं, तलाश करते करते आप वादिये तुवा में पहुंच गए हैं, वादिये तुवा में पहुंच गए। जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर आग चल रही है, आग चल रही है। जब आप करीब पहुंचे आवाज आती है पकड़ा नालैन का, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, ऐ मूसा अपने नालैन को निकाल दे, आप अपने नालैन को निकाल दे। आप वादिये तुवा में पहुंच चुके हैं और आवाज कहां से आ रही है, आवाज आती इन्नी अनल्लाह, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है इन्नी अनल्लाह, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूँ। ये आवाज कहां से आ रही है, पेड़ के ऊपर एक आग चल रही है, आग से आवाज आती है इन्नी अनल्लाह। तो जब आग से आवाज आई है तो मुस्तफा जाने रहमत ने भी माना है आग से अल्लाह बोल रहा है, अबू बकर सिद्दीक ने भी माना है आग से अल्लाह बोल रहा है, उमर फारूक ने भी माना है आग से अल्लाह बोल रहा है, उस्मान गनी ने भी माना है आग से अल्लाह बोल रहा है, सारे सहाबा ने माना है आग से अल्लाह बोल रहा है। अपने अशरफ अली थानवी ने भी माना है आग से अल्लाह बोल रहा है, महमूद रेमंदी मान रहा है अल्लाह आग से बोल रहा है, फतेह मोहम्मद जालंधरी लिख रहा है अल्लाह आग से बोल रहा है। सबने माना आग से जो आवाज आ रही थी वो अल्लाह की आवाज आ रही थी। अब फैसला आपको करना है, इंसान को अल्लाह ने सबसे बेहतर बनाया है या आग को बेहतर बनाया? सबसे बेहतर अल्लाह ने बनाया किसको? तो सब यही कहेंगे। अल्लाह फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत सबसे बेहतर बनाया है। और बनाकर अल्लाह ने कह दिया वलक़द कररमना बनी आदम का ताज हजरत इंसान को पहना दिया कि सारी मखलूक़ात में सबसे बेहतर हजरत इंसान है, सारी मखलूक़ात में सबसे बेहतर हजरत इंसान है। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब को कोई और कपड़ा नहीं बल्कि बशरियत का जामा पहनाकर दुनिया में भेजा कि कायनात में जितनी मखलूक़ात है सबसे बेहतर हजरत इंसान है। अब आप बताओ इंसान बेहतर है, इंसान आला है, ज़मीन अदना है, इंसान आला है, आसमान अदना है, इंसान आला है, सूरज अदना है, इंसान आला है, चाँद अदना है, इंसान आला है, पानी अदना है, इंसान आला है, हवा अदना है, इंसान आला है, पानी आग ये सब अदना है। तो जब अदना से अल्लाह बोल रहा है तो सबने माना अल्लाह बोल रहा है। अगर आला की ज़बान से अल्लाह बोले तो मानना पड़ेगा, इंतज़ार है उनका की ज़बान से कोई शोर नहीं है अल्लाह बोल। मानना पड़ेगा अल्लाह वालों की ज़बान से अल्लाह बोल रहा है क्योंकि इंसान सबसे बेहतर है, इंसान सबसे आला है। और सुने वलियों का मकाम अल्लाह अकबर, वलियों का रुतबा अल्लाह अकबर, वलियों की कुव्वत अल्लाह अकबर, वलियों की ताकत अल्लाह अकबर, वलियों की सल्तनत अल्लाह अकबर। गौर करें जिस वक्त में तालिब इल्म था बहराइच शरीफ की सरजमीन पर 2002 की बात है, 2002 की बात है। उस वक्त मुफ्ती महमूद अख्तर साहब जो तुर्की हिंदुस्तान मुफ्ती रजब अली साहब के बेटे मुफ्ती महमूद अख्तर साहब हैं, खड़े हुए स्टेज पे 2002 की बात है। उससे मुकद्दस में ऐलान हो
हो रहा है कि सुनो लोगों, एक जबरदस्त वाकया कल ही रूनुमा हुआ है। कल एक ऐसी बात पैदा हुई है, उस वक्त मैं बहराइच शरीफ में ज़ेरे तालीम था, उस वक्त मैं पढ़ रहा था, ऐलान क्या हो रहा है। कल के दिन एक औरत आई थी और अपनी जबान गाजी मियां के दरबार में काट कर रख दी है। मामला क्या हुआ था सुने, एक गैर मुस्लिम औरत थी जो बहराइच शरीफ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है जिसे इकौना कहा जाता है। इकौना के अतराफ में रहने वाली एक गैर मुस्लिम औरत थी। 15 साल का जमाना गुजर गया था, उसके यहाँ कोई बेटे नहीं हुए थे। शादी को 15 साल का जमाना गुजर गया था, लेकिन बेटे नहीं हुए, कोई औलाद नहीं हुई थी। अल्लाह अकबर, वो औरत न जाने के लिए क्या आया है, वो पहुंची गाजी मियां के दरबार में, सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में पहुंची। मज़ार मुक़द्दस को पकड़कर मिन्नत मांगती है, हुजूर अगर मेरे यहाँ भी कोई फूल खिल जाए, मुझ पर भी आपकी दया हो जाए, आपका करम हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, तो हुजूर अगर आपकी निगाह करामत हो जाए, निगाह शहादत हो जाए, निगाह विलायत हो जाए, तो अल्लाह मुझे भी औलाद वाला बना दे। और हुजूर मैं आपकी बारगाह में ज़बान दे रही हूँ, अगर मेरी गोद में फूल खिल गया तो अपनी ज़बान आपकी बारगाह में काट करके दे दूँगी, काट करके दे दूँगी। तोहफा कह रही है, तोहफा दूंगी, ये मिन्नत वाली है। अल्लाह का करम देखें, घर गई, कुछ ही दिन के बाद मुझे एहसास हो गया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो हामला हो गई है, उसके पेट में बच्चा है। अब बड़ी खुश हुई, मियाँ बीवी बड़े खुश हो गए, दोनों मियाँ बीवी खुशी के मारे झूम रहे हैं, वक्त गिन रहे हैं, दिन गिन रहे हैं। वक्त गुजरता गया, तारीख गुजरती गई, महीने गुजरते गए, आखिर वो दिन आ गया है जब वक्त पूरा हुआ, वज़ह हमल का वक्त हुआ। मियाँ बीवी बड़े खुश हैं। अल्लाह के करम से सैयद सालार मसूद गाजी की अता से उस गैर मुस्लिम औरत के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा होता है, एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। जब खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है ना, जब खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, वो औरत बड़ी खुश हुई है। अब इंतजार करने लगी है अपने पाकी का। जब वो पाक हो गई, अपने पति से, अपने शौहर से कहती है, मैंने मिन्नत मांगी थी गाजी मियां के दरबार में, अगर मेरे यहाँ कोई फूल खिल गया, गाजी आपका कर्म हो गया, तो मैं अपनी जबान आपके बारगाह में दे दूंगी, अपनी जबान काट कर आपकी बारगाह में रख दूंगी। अल्लाह अकबर। ए लोगों गौर करो, मेरी माँ बहनों, आप लोग अल्लाह के बली के उर्स में आए हैं तो ये पैगाम भी लेकर के जाएं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन की तालीम से पहले आरास्ता करें, खुद सवरें, अपनी औलाद को संवारें, वरना ये जमाना आपको जीने नहीं देगा, वक्त के लोग आपको जीने नहीं देंगे। अगर दुश्मनों के हमले हो रहे हैं तो हमारी उसमें कमी है, हमारी कमी है, हमारे अंदर खराबियां हैं, खराबियां बहुत है। अजानें हो रही है, नमाज की परवाह नहीं है, खराबियां बहुत है। हमारे घर के बच्चे कुरान पढ़ना नहीं चाहते, खराबियां बहुत है। हमारे बच्चे अपने चेहरे पे खंजर चलवा रहे हैं, दाढ़ी पे दाढ़ी छिलवा रहे हैं, खराबी बहुत है। हमारी बहन बेटियां बेपर्दे का मुजाहरा कर रही है। तो जब आप उर्स में आए हैं तो उर्स में मार्केटिंग नहीं, उर्स में रोड छाप नहीं, उर्स में आओ तो बड़ी की बारगाह में आकर अपने आंखों से अश्क बहाकर उनकी बारगाह में इस्तिगासा पेश करो, अरीज़ा पेश करो। हुजूर हम अपने फला फला गांव से आए हैं, कुछ उम्मीदें लेकर के आए हैं, कुछ इरादत लेकर के आए हैं, कुछ तमन्नाएं लेकर के आए हैं। हुजूर अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है, आप अल्लाह के प्यारे हैं, आप अल्लाह के मतवाले हैं। हमारा ये काम हो जाए दुआ कर दें, हमारी ये बिगड़ी बन जाए दुआ कर दें, हमारा ये मामला दुरुस्त हो जाए दुआ कर दें। ऐ मेरी माँ आप संवरो, अल्लाह की कसम, जब घर की औरत संवर जाती है तो पूरा घर बुक़्क़े नूर बन जाता है, पूरा घर संवरता हुआ नजर आता है। माँ बहनों को पहले संवरने की जरूरत है। आप रोड छाप न बने, इत्मीनान से बैठकर उलमा की तकरीर सुने। अभी सुनिएगा खलीफा ताजुश्शरिया की तकरीर, सुनिएगा, समझिएगा तकरीर क्या होती है, आलिम दीन का मामला क्या होता है। क्योंकि आज के दौर में उलमा को गाली भी दी जाती है, बुरा भला भी कहा जाता है। उधर न जाते हुए सुने, अगर उलमा हक की बात बता रहे हैं तो आप उनसे दुश्मनी न करें, वो गाली ना दें। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर साहब बुखार है तो डॉक्टर साहब देखते हैं बुखार इंजेक्शन लगाने के लायक नहीं है या नहीं है, टेबलेट से काम चल जाएगा या कैप्सूल से काम चल जाएगा। अगर देखता इंजेक्शन देना ही पड़ेगा तो डॉक्टर फौरन निकालता है और इंजेक्शन लगाता है। तो क्या उस वक्त मजा मिलता है? मजा मिलता है नहीं। जब इनसे इंजेक्शन लगता है तो बर्फी खाने का मजा मिलता है, इंजेक्शन लगता है तो जैसे लगता है आदमी रसगुल्ला खा रहा है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। इंजेक्शन लगा कितने लोग तो रोने लगते हैं, बच्चे तो बच्चे,
जवानों को मैंने देखा आंसू गिराती है इंजेक्शन देख करके। इतना तो आप बताओ, क्या किसी आदमी ने आज तक डॉक्टर को गाली दिया? किसी ने डॉक्टर को बुरा कहा? किसी ने डॉक्टर की बुराई की? कोई मरीज डॉक्टर को गाली नहीं देता। इंजेक्शन लगाने पीछे को जानता है, वो जानता है इंजेक्शन लगा रहा है तो मेरे बर्बादी के नहीं बल्कि मुझे सेहतयाब बनाने के लिए इंजेक्शन लग रहा है। दर्द बर्दाश्त कर लेता है, वो तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन डॉक्टर को बुरा नहीं कहता। आए लोगों, इसी तरह के उलमा आपके जिंदगी को साफ करने के लिए दीन की बातें बताते हैं, शरीयत की बातें बताते हैं, ताकि हम और आप गुनाह से बचे, हम और आप बुराई से बचे, हम और आप पाप से बचे, हम और आप गंदगी से बचे। ये बचाने की कोशिश करते हैं। तो कितने लोग होते हैं प्रवाद खड़ा कर देते हैं, मौलवी अच्छा नहीं, जल्दी से निकालो। यार एक मौलवी को निकालोगे तो क्या आपके अब्बा पढ़ाएंगे, दूसरा आएगा तो मौलवी आएगा, आएगा तो आलिम आएगा। आपने अपने बेटे को इस लायक नहीं बनाया कि मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो जाए। ना आपके घर में कोई ऐसा है जो मुसल्ला इमामत को संभाले। आएगा तो कोई ना कोई हमारी ही गुरु का। जाओगे कहाँ बचकर यार, किधर जाओगे? अगर आलिम ने कह दिया हम नमाज जनाजा बदअकीदे की नहीं पढ़ाएंगे, अरे बाप रे बाप, फूल कर गुब्बारा क्या कहने हैं भाई? मारो मारो, खाको फेंको। यार इमाम की इस्लाह कर रहा है, आपके अकीदे को बचा रहा है, आपको कट्टे में नहीं फेंक रहा, बता रहा है। अगर बदअकीदे का जनाजा पढ़ोगे तो तुम्हारा ईमान भी चौपट बचा रहा है, आपको बचा रहा है, आपको जहन्नम की तरफ जाने से जन्नत के रास्ते की तरफ ले जा रहा है। तो उलमा की मुखालिफत न करो, क्योंकि पैदाइश से लेकर मौत तक यही उलमा काम आते हैं। अल्लाह अकबर। अब वो गाजी मियां के यहाँ वो औरत गई, अपने शौहर से कहती है चलो मिन्नत पूरी करनी है। अब मियां बीवी दोनों गए हैं। अब न जाने वो औरत क्या लेकर के गई, बच्चे को मजार से लगा के रख देती है, जबान को पकड़ती है निकाली और काटने वाली चीज जबान कट गई, जबान का कटना था, औरत बेहोश होकर के गिर गई है, खून का फव्वारा जारी हो गया, पूरे जानवर परेशान हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तो बदअकीदों को और मौका मिल जाएगा, अब तो वलियों के दुश्मनों को और मौका मिल जाएगा, और शहीदों के दुश्मनों को और मौका मिल जाएगा। ये तो फतवे लगाएंगे, देखो देखो वलियों की बारगाह में मांगने जाते हैं, यहाँ तो ज़बानें कट रही है, यहाँ जान जाने की नौबत आ रही है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक मुजावर का ईमान देखें, एक मुजावर की कुव्वत ईमानी को देखें। अल्लाह अकबर। वो मुजावर एक पानी लेकर के दौड़ा है। कौन सा पानी है? वो पानी है जो मज़ारे सेक्रेटरी सालार मसूद गाजी को गुस्ल दिया हुआ पानी है, मज़ार का गसाला है, वही लेकर के पहुंचा। और उस औरत को जो गेट के सामने दफ्तर है, उस दौलत दफ्तर के सामने लिटाया गया है, वही उस औरत को लिटाया गया है। जबान अलग पड़ी है। देखे देखे अल्लाह वालों का हाल, देखे अल्लाह के प्यारों का हाल, देखे क्या हाल है। अल्लाह अकबर। अब वो मुजावर दौड़ा है, पानी लेकर के पहुंचा, कहा रास्ता साफ करो, रास्ता साफ कर दिया गया, इसके मुंह को खोला जाए, किसी तरह मुंह को खोला गया। वही गुस्ल शरीफ का पानी मुंह में डालता है, खून जो कुछ जमा है उसको निकालता है, कटी हुई जबान को कटी हुई जगह पर लगाता है, गुस्ल का पानी डालता है, डालना था, कटी हुई जबान फिर से फिर से जुड़ जाती है। और समझें जबान जुड़ गई, जैसे जबान जुड़ी है वो औरत होश में आ गई। ये अल्लाह वालों का हाल है। तो उधर खान का इधर जलसगाह मौलाना रिजवानुल्लाह साहब ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आलिमा भी पढ़ाती है, बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं। ऐ लोगों, वो जगह की किल्लत है, इस पर डबल मंजिल बनानी है, डबल इमारत खड़ी करनी है। अब माओ से मैं अर्ज करूंगा, ऐ मेरी माओ, वहाँ तो औरत जबान दे रही है, आपकी जबान की जरूरत नहीं। ऐ मर्दों, आपकी जबान की जरूरत नहीं है। अपने जेब में हाथ डाला और मदरसे के नाम पर अपनी गाड़ी कमाई से ला करके कुछ जमा कर दे। मेरी बहनों आप भी, मेरे भाइयों आप भी, बुजुर्गों आप भी, ताकि मदरसा बने, आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके बच्चे दीन पढ़े, आपके बच्चे शरीयत पढ़े। अब आपसे रिक्वेस्ट है, मदरसे के नाम पर कुछ ला करके इनायत कर दे। माओ आप भी ला कर कुछ दो। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नफीस भाई की तरफ से 500 रुपए आ गए। अल्लाह ताला इसे
माशाल्लाह देखिए कमेटी के अफराद 500 1000 रुपया आ गया माशाल्लाह। आप लोग आगे बढ़े मेरी बहनों, आप भी पीछे ना रहे और अपनी गाड़ी कमाई। देखिए हमारे शायर इस्लाम नूर मोहम्मद साहब के बड़े भाई 100 रुपया दिए, अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। आप लोग इसमें पीछे ना रहे, अपनी गाड़ी कमाई से अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? अमीरुल्लाह साहब की तरफ से 500। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह देखिए हमारे भैया हैं 500 रुपया दिए हैं। आप लोग पीछे न रहे क्योंकि यहाँ आप पैसा देंगे, अल्लाह का बनी गवाह है। इतने लोग अमनो आलम माशाल्लाह 500 रुपये मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। देखें मेरा वक्त ज्यादा नहीं है, कुल मिलाकर 5-7 मिनट और मेरे बाकी हैं। आप हजरात कोशिश करें, उसके बाद खलीफा ताजुश शरिया आपके सामने होंगे। माओ आपसे भी गुजारिश है, आप भी दें और अल्लाह की अता से अल्लाह ने आपको जो नवाजा है एक वली के नाम पर एक मदरसे के लिए, जिस मदरसे की बुनियाद इफ्तिखार साहब ने रखा माशाअल्लाह। ये मदरसा जिसको अल्लाह के वली ने अपने हाथ से इसका बुनियाद रखा था, इस मदरसे के लिए आपसे मांगा जा रहा है। और इतने मजमे में अगर 40-50 हजार 1 लाख रुपया ना जमा हो तो फिर अफसोस है, फिर अफसोस है। आप लोग हमारे भाई की तरफ से 500 रुपया आ गए, अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। कर दिया है, अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अल्लाह के वली की बारगाह में है, आप अपनी गाड़ी कमाई से दें और किसी को किसी से भेजवा दें। आप ये भी कर सकते हैं, माँ बहन बेटियां जेवर भी दे सकती हैं, सोने चांदी भी दे सकती हैं कि उनका माल मदरसे में लगेगा। जिस मदरसे की बुनियाद अल्लाह के वली ने रखा, जिसके उर्स में आप हज़रात तशरीफ लाए हैं। माशाअल्लाह देखिए हमारे हफीज भाई ने कहा जब तामीर शुरू होगी तो एक ताली ईद की तरफ से सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी सीमेंट बालू लोहा सब लिखवा सकते हैं और इसमें ऐसे सारे लोग खरीद हैं। इसमें बहुत से मतवई लोग भी हैं, बहुत से अच्छे माली हालत के भी लोग हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। अभी आपको खलीफा ताजुश शरिया की तकरीर समाप्त करनी है। मेरे असातिज़ा अल्लामा मुद्दीन साहब किबला, अल्लामा शहाबुद्दीन साहब किबला ये मेरे उस्ताद हैं, अल्लामा अख्तर अली साहब किबला मेरे उस्ताद हैं। इन बुजुर्गों का सहारा लेते हुए हमारे भाई साहब ने 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। है कोई बंदा जो कहे मैं अपने माँ के नाम पे 5000 दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, 11,000 दे रहा हूँ? है कोई बंदा जो अल्लाह के वली सूफी इफ्तिखार साहब का हवाला देकर कहे मैं इस अल्लाह के वली की मोहब्बत में मैं अपना जेवर दे रही हूँ, मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, मैं ईंट दूंगा या मैं सीमेंट दूंगा या लोहा दूंगा या रेती बालू दूंगा, गिट्टी दूंगा? आप सबका ऐलान करा सकते हैं क्योंकि मदरसे की तामीर होनी है, मदरसा बनेगा जहाँ पे हमारे नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान आला हजरत उर्से मुक़द्दस फैजान इफ्तिखार औलिया नारे तकबीर नारे रिसालत। देखिए हमारे बड़े भाई अमीन शेख साहब ने कहा मदरसे के लिए मैं 11,000 रुपया दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उनके भाई की तरफ से 5,000 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों भाई ने मिलकर 16,000 रुपया इनायत किया। अल्लाह ताला इनके दौलत में, इनके कमाई में, इनकी रोजी में, उम्र में बरकत अता फरमाए और तीनों दुनिया की प्रकाश से माला माल फरमाए। मेरी बहनों मेरी माँ आप पीछे न रहें, आप भेज सकती हैं, जेवर भी भेज सकती हैं, अपने गले हार, नाक के पैर के हार भी भेज सकती हैं। मदरसे में लगेगा कहीं और माशाअल्लाह। वारिस अली साहब की तरफ से 5,000 रुपये सुभान अल्लाह। और देखें एक इस्लामी खातून की तरफ से ये नाक का सोने का एक जेवर आ गया सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। हमारी माँ बहनें भी पीछे नहीं रहती हैं सुभान अल्लाह, बहुत सा पैसा भी भिजवाई है और एक जेवर आ गया है। इतने जेवर में काम नहीं चलेगा। मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज करूंगा इस तरह से आप नमाज दें कि आप ही के जेवर से पूरा मदरसा तामीर हो जाए। ऊपर की जो बिल्डिंग तामीर होनी है आप लोग भी पीछे न रहें, सोचे ना ये वक्त हाथ से चला जाएगा। आप पैसा न लाए हो लिखवा सकते हैं। अल्लामा रिजवानुल्लाह साहब की अली भी तशरीफ फरमा है और यहाँ के इमाम साहब हैं और कमेटी के अफराद हैं। आप कह सकते हैं, कहलवा सकते हैं, आप भेजें जल्दी जल्दी, इसमें पीछे न रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के अतियात और खैरात को कबूल मकबूल फरमाए।
अल्लाह ताला इसे कबूल व मंजूर फरमाए। उठे उठे, अभी सोचे ना मेरी माँ बहनों, अभी आपकी तरफ से कुछ नहीं आया है, मेरा वक्त बिल्कुल करीब हो गया है, खत्म होने को करीब है, मैं बैठ जाऊंगा। उसके बाद फिर आप कहीं ऐसा ना हो आप अफसोस करें कि शकील अख्तर निजामी बैठ गया है। आप भेजें अपने पैसों को मदरसे के लिए, मदरसे की तामीर के लिए, जहां आपके बच्चे पढ़ेंगे संवरेंगे और काला रसूल की तालीम हासिल करेंगे। आप चुप न रहें। जिस तरह हमारे भाइयों ने, किसी ने ईंट, किसी ने 11,000, किसी ने 5,000, किसी ने 5100 देने का वादा किया, आप लोग भी खड़े हो, आप लोग भी अपने नजराने अकीदत को पेश करें। एक अल्लाह के वली के उर्स में आए हुए हैं, आप दें और समझ लें कि अल्लाह वाले अगर कर्म कर दिए तो 5 के बजाय न जाने कितने लाख आपको अता हो सकता है, न जाने कितनी अल्लाह की नेमतें आपके ऊपर बरस जाएगी। तो आप इसमें पीछे न रहे। अल्लाह के राह में खर्च करने से खट्टा नहीं अभी पड़ता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, जो तुम खर्च करोगे उसका तस्कूना अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, उसका तस्कूना तुम्हें मिलेगा। और समझ लें कि पैसे हमारे ऐसी वैसी जगह नहीं, जहां कुरान जैसी नारे किताब की तालीम दी जाती है वो मदरसा बनेगा, उस इमारत की तामीर होगी, इसके ऊपर डबल इमारत खड़ी करनी है। इसके लिए मोहम्मद शकील अख्तर निजामी आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा है। इसके लिए आपसे अमीरुल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे मुक़द्दस आली जनाब अमीरुल्लाह भाई साहब ने कहा मेरे मरहूम वालिद के लिए, उनके लिए 11,000 रुपए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमाए, ऐसा बेटा सबको अता फरमाए, माशाअल्लाह। ऐसे ऐसे लोग अगर तैयार हो जाए तो फिर ये मदरसा बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। देखा अल्हम्दुलिल्लाह 16, 5, 21 और 11 32,000 रुपए हमारे भाइयों ने दे दिया है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, पीछे न रहे, कोशिश करें जल्द से जल्द। मेरा वक्त बिल्कुल 2-3 मिनट और बचा हुआ है, मैं बैठ जाऊंगा और आप लोग इस नेकी से महरूम रह जाएंगे। ये समझ लें, आज आपका पैसा खर्च होगा, आज आपका रुपया लगेगा, आपकी गाड़ी कमाई से आपका माल यहाँ खर्च होगा, लेकिन इसका बदला सुबह कयामत तक आप हमारे बाबू ने 100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देखें उससे मुक़द्दस से उर्स में आए हैं। मैं मानता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो उर्स करने के बराबर पैसा लेकर के आए होंगे, तो आप फिक्र न करें, आप लाकर नाम दर्ज करा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मौलाना साहब मेरे तरफ से इतना है, लिखवा दीजिए, मेरे तरफ से ये है, ये लिखवा दीजिए। माँ बहनों, आप भी बहुत पीछे हो, आप अभी पीछे हो। एक जेवर आया है, उसका जोड़ा तक नहीं लगा है, ये भी एक अफसोस की बात है। हमारी बहनें वो भी शिकलापुर में पीछे हैं। अल्लाह अकबर, छोटे छोटे गांव की बहनें इतनी आगे होती हैं, माएँ आगे होती हैं, लेकिन यहाँ बहनें हमारी जो दूर दराज से आई हैं, लग रहा है मायूसी के आलम में है। एक वली की बारगाह में आए हैं, मायूस ना हो, कुछ लेकर के जाएंगे, अल्लाह वाला आपको कुछ अता करेगा। इतने उलमा तशरीफ फरमा है, इनकी चेहरों की ज़ियारत करें। अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। देखिए माशाअल्लाह, एक बहन ने अपने पैर का पास, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए तालिब इल्म के हौसले को